Good morning to all of you. Myself Dr. Manju Yadav, Assistant Professor in Chemistry in Government College Kosli Rewadi. Good morning to all of you. Today I am here to present or deliver a lecture on alkanes. Alkanes are simplest hydrocarbons made up of carbon and hydrogen atom. Hydrocarbons are those molecules or compounds which are only made up of carbon and hydrogen. Alkanes, the simplest alkane is CH4. It is made up of one carbon atom and 4 hydrogen atom. Then the another is C2H6, ethane. This is methane. Alkanes are called saturated hydrocarbons. As well as paraffins, because these contains one single covalent bond and these are highly stable species and not usually reacted by laboratory reagents. Hence these are termed as saturated hydrocarbons or paraffins. In alkanes, if we take example of simplest alkane, methane, carbon is present here, 4 bonds are present in tetrahedral manner, one hydrogen atom is below the plane, another hydrogen atom is on the above the plane and 2 hydrogen atoms are on the plane. This is the simplest structure of alkane. The bond angle between HCH is found to be 109 degree 28 minutes and the bond length between carbon and hydrogen is 110 picometer and the bond length between carbon and carbon is found to be 154 picometer. This is the simplest alkane known as methane. The structure is present here. The carbon here is sp3 hybridized. When the sp3 hybridization is present, the atom shows tetrahedral geometry. Geometry is tetrahedral. In this tetrahedral geometry of carbon, 4 bonds are present. The overlapping is in such a way is that 1s orbitals of hydrogen overlap with sp3 hybrid orbitals of carbon. Here this bond in dashed view is present below the plane, this bond is present above the plane and these 2 bonds are present on the plane. Hence this is the simplest structure of alkane known as methane. Now classification of carbon in alkanes. Classification of carbons in alkanes can be written in 4 terms. In first, when carbon is joined or bounded with only one carbon or no carbon, then it is called primary carbon. If carbon of alkanes is joined or bind by 2 carbon atoms, then it is called secondary carbon. Tertiary carbon is then when carbon form 3 bonds with another carbon, and in quaternary carbons, carbon form 4 bonds with 4 carbons. Example is neopentane. If we take example of neopentane, CH3, 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 CH3. This is the example of neopentane. In this structure, we can say that this carbon is joined by 4 carbon-carbon bonds. Hence, this carbon is quaternary. If we take example of isopentane, suppose CH3, CH2, CH, CH3, CH3. This is called isopentane. In this structure, if we classify the carbons according to their binding with carbon-carbon atoms, we can say this carbon is primary carbon because it is attached to only one carbon atom. If we talk about this carbon, then this carbon is joined by one CC bond, another CC bond. Hence, this carbon is secondary carbon. If we talk about this carbon, here 3 carbon-carbon bonds are present and this carbon is tertiary carbon. Here only one carbon-carbon bond is present, hence this carbon is also primary carbon and this carbon is also primary carbon because here only one carbon-carbon bond is present. So among the structures, if we take any structure, we can classify the carbons as primary, secondary, tertiary and quaternary depending upon the number of carbon bonds joined by that carbon. So this is the classification of primary, secondary, tertiary and quaternary carbons. Now our next topic is methods of formation of alkanes, how we can prepare alkanes.
First of method is the simplest method, hydrogenation of unsaturated compounds. First method is hydrogenation of unsaturated compounds. Topic is methods of synthesis of alkanes. First method is hydrogenation of unsaturated compounds. Unsaturated compounds. Reaction is also known as name reaction, Sabatier-Sandons reaction. Sabatier-Sandons reaction. In this reaction, unsaturated compounds are hydrogenated in the presence of finely divided catalyst, either nickel. If we take example of alkene, CH2 double bond CH2, then hydrogenation. So in case of hydrogenation, we add hydrogen. Catalyst taken is nickel. Temperature conditions are 525 to 575 Kelvin. We get hydrogenation and we get the product CH3. Hence from ethene we get ethane. Similarly, if we take another example of unsaturated compound, instead of ethene, now we take ethyne, CH triple bond CH. We also get reduction, addition of hydrogen, nickel as a catalyst. These are temperature conditions. We get CH3 and CH3. Here 2 moles of hydrogen are used because triple bonds are present. One H2 molecules is used to convert this ethine into ethene. Then another mole of H2 hydrogen converts ethene into ethane. Our last and final product must be ethane. Hence this is the first method. इस मेथड के थ्रू हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को एल्केन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. वी टेक एग्जाम्पल ऑफ इथीन का एग्जाम्पल लिया, इथाइन का एग्जाम्पल लिया, हमने हाइड्रोजनेशन किया या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. दीज आर द टेम्परेचर कंडीशंस एंड फाइनली हमें क्या मिले, हाइड्रोकार्बन्स मिले. नाउ नेक्स्ट मेथड, next method of formation of alkanes is reduction. This is the second method, reduction of alkyl halides. Yes, now if we take alkyl halides, suppose we take general example, हमने RX लिया, उसका जब हम रिडक्शन करेंगे जिंक in acidic conditions, then we get the product RH plus HX. सिमिलरली हमने मान लो दूसरा एग्जाम्पल लिया CH3Cl और हम जिंक के साथ जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहल की प्रेजेंस में अगर हम ये लेते हैं तो भी हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH4 प्लस HCl. द अनदर वे, अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन ऐड कर दें लेकिन साथ में हम कैटलिस्ट क्या लें, प्लेटिनम या पैलेडियम, देन वी गेट H एंड H RH प्लस HX. तो ये एक जनरल मेथड है कि एल्काइल हैलाइड्स को हम एल्केन्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिडिक कंडीशंस, आइदर जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहलिक कंडीशन, और वी कैन डू डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड वी गेट हाइड्रोकार्बन्स. अगर हम जनरली सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स का, एल्काइल आयोडाइड का ही अगर हम रिडक्शन करना चाहें तो उसकी हम क्या करेंगे, HI के साथ रिएक्शन करेंगे, रेड फॉस्फोरस लेंगे और हमें क्या मिलेगा, RH प्लस I2. ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एल्काइल आयोडाइड्स को रिड्यूस करने की रिएक्शन है. मान लो इसके लिए हम एग्जांपल लें, R हमने लिया C2H5 इथाइल ग्रुप, इथाइल आयोडाइड साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड, in presence of red phosphorus we get ethane C2H6 plus HI. तो ये कुछ जनरल रिएक्शंस हैं. तो हमने एक टॉपिक क्या पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड्स का भी हम रिडक्शन करके एल्केन्स को जनरेट कर सकते हैं. दिस इज द सेकंड मेथड. नाउ थर्ड मेथड,
थर्ड मेथड बड़ी ही नेम रिएक्शन है, जानी पहचानी रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड वुर्ट्ज रिएक्शन। यस, थर्ड मेथड इज वुर्ट्ज रिएक्शन। वुर्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो अल्काइल रेडिकल्स को जोड़ते हैं, और वो अल्काइल रेडिकल्स किस तरह जनरेट होंगे, जब हम अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, सपोज RX प्लस मेटालिक सोडियम लेंगे, नाउ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड RX एंड वी गेट एल्केन्स, यहाँ से हमें एल्केन मिलेंगे। यस, तो R प्लस NaX, फॉर एग्जाम्पल CH3Br प्लस 2Na, दिस इज मेटालिक सोडियम, ठीक है, मेटालिक सोडियम, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH3Br, वी गेट इथेन, CH3 एंड CH3, तो हमें क्या मिला, इथेन, मीन्स हमें सिमेट्रिकल एल्केन मिली। यस, और साथ में हमें क्या मिला, 2 मोल ऑफ NaBr। लेकिन इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है कि इससे हमें सारी सिमेट्रिकल एल्केन मिल रही हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या है, इससे हम मीथेन का मॉलिक्यूल जनरेट नहीं कर सकते, जो सिंपलेस्ट जो हमारी एल्केन है मीथेन, उसको भी हम जनरेट नहीं कर सकते। साथ में एक एडिशनल पॉइंट ये है कि जो हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था, सेबेटियर-सैंडन्स रिडक्शन, उसमें भी हम मीथेन को जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट थे वो या तो एल्काइन था या एल्कीन था, और सिंपलेस्ट एल्कीन और सिंपलेस्ट एल्काइन में हमेशा 2 कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे, तो हमें मीथेन जनरेट वहाँ पे नहीं हो पाएगा। सिमिलरली वुर्ट्ज रिएक्शन में भी वी कैनॉट सिंथेसाइज मीथेन। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन जनरेट करना चाहें, सपोज करो वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3Br, यहाँ पे हमने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया प्लस सोडियम मेटल, अब हमने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया CH3CH2Br, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। यस, तो क्या प्रोडक्ट मिला, CH3CH2CH3 प्रोपेन प्लस 2NaBr। नाउ इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है, हमें प्रोपेन तो मिला, बट ये जो आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, इसमें भी जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो आपस में कंबाइन होके हमें साथ में इथेन का मिक्सचर भी मिलेगा, CH3CH3। सिमिलरली इथाइल जो ब्रोमाइड है, इसमें भी इथाइल के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके CH3CH2 डबली कंबाइन होके हमें ब्यूटेन भी मिलेगा, CH3CH2CH2CH3। तो हमें मेन प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए था, अनसिमेट्रिकल एल्केन, प्रोपेन, बट प्रोपेन के साथ साथ वी आल्सो गेट इथेन एज वेल एज ब्यूटेन, hence the yield of our main product get decreases, hence this reaction is not very suitable for formation of alkanes, because the drawbacks for this reaction is that we only symmetrical alkanes get formed by this reaction. Second drawback is that we cannot synthesize methane by this reaction, and third drawback is that ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स के साथ साथ हम इस रिएक्शन से अगर हम अनसिमेट्रिकल की बनाने की ट्राई करते हैं तो वी गेट ए नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स एंड द यील्ड ऑफ द रिएक्शन गेट डिक्रीजेज। तो ये थी वुर्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को थोड़ा सा वुर्ट्ज रिएक्शन में जो लिमिटेशंस थी उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जो रिएक्शन आई वो आई कोरे हाउस सिंथेसिस। यस, द फोर्थ मेथड इज कोरे हाउस सिंथेसिस। Now we will study about four methods of formation of alkanes. Fourth is Corey-House synthesis. In Corey-House synthesis, first of all, RX alkyl halide, any alkyl halide is reacted with copper dialkyl lithium. Copper dialkyl lithium. Suppose this is R dash, this R dash and R are different, hence we take here R dash. इससे जब हम रिएक्शन करेंगे तो R ग्रुप हमारा जो एल्केन बनेगा
उसका एक जो आर ग्रुप है वो यहाँ से जनरेट होगा और दूसरा आर ग्रुप यहाँ से, तो हमें जो एल्केन मिलेगा वो आर डैश और आर मिलेगा, प्लस आर सी यू कॉपर का एल्काइल प्लस लिथियम का हैलाइड। सपोज इफ वी टेक एग्जांपल CH3Cl, क्लियर, मिथाइल क्लोराइड। देन ये यार हम क्या लेंगे, मान लो हमने इथाइल ले लिया, तो इथाइल के कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2, तो डाई इथाइल लिथियम कॉपर। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 R फ्रॉम हेयर, इथाइल ग्रुप फ्रॉम हेयर एंड मिथाइल ग्रुप फ्रॉम हेयर, वी गेट प्रोपेन CH3 CH2 CH3 प्लस C2H5 कॉपर प्लस LiCl। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, प्रोपेन। तो कोरे हाउस जो सिंथेसिस रिएक्शन है इज मच फार बेटर देन वुड्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम सिमेट्रिकल एल्केन के साथ साथ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का भी ड्रॉबैक ये है कि हम मीथेन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो दिस इज द कोरे हाउस सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। नाउ फिफ्थ मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स इज Kolbe's electrolysis method. Now we will discuss about Kolbe's electrolysis method. Fifth method is Kolbe electrolytic method. In this method, a strong aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid is taken and then we proceed it for further for electrolysis. हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का या तो सोडियम साल्ट या कार्बोक्सिलिक साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, यस, और उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, यस। तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एल्केन प्लस molecules of carbon dioxide plus hydrogen gas plus 2NaOH. This is the reaction. Mechanism for this reaction, mechanism क्या होगा, सबसे पहले RCOO Na, इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन, यस, 2 मोल्स थे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, यस, बैलेंस द रिएक्शन। नाउ वाटर का आयनाइजेशन 2H2O, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आयनाइजेशन, तो वाटर किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नाउ बैलेंस द रिएक्शन, यस। तो सबसे पहले क्या हुआ, आयनाइजेशन हुआ, उसके बाद आपकी जो रिएक्शंस होंगी, तो पहले एनोड पे, एट एनोड, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये जो मॉइटी है कार्बोक्सिलेट एनाइन RCOO नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, एक मॉलिक्यूल RCO नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। तो सबसे पहले बनेगा RCOO, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल ये स्पीसीज बन जाएगी न्यूट्रल, बट दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। टू गेन द स्टेबिलिटी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगी, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 CO2 बाहर निकल जाएंगे और RR का क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग, वी गेट RR प्लस CO2 के 2 मॉलिक्यूल। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये किस पे हुई है, एनोड पे। नाउ एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज हुए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो 2H पॉजिटिव आयन थे प्लस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, तो 1H पॉजिटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2 के अंदर, सॉरी यहाँ पे सिर्फ H2 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, H2 के अंदर। तो अब आप अपनी जब रिएक्शन को कंपाइल करोगे
तो आप देखोगे वी गेट H2 molecule, here this is present, 2 molecules of CO2, yes these are present, yes R, yes our alkane is present, and 2Na positive from here, 2H negative from here, we get 2NaOH. Now this method is Kolbe's electrolytic method. इसमें electrolysis हो रहा है इसलिए इसको electrolytic, and Kolbe is due to the name of the scientist. This is the Kolbe's electrolytic method. The drawback of this method is also that we cannot synthesize methane from this reaction. Yes. Now next method is, अब हम ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसे हम डायरेक्ट मीथेन को जनरेट कर सकते हैं. यस. एल्यूमिनियम कार्बाइड की हम ड्रॉपिंग करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम का तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन मिलेंगे. ये जनरल सिंपल रिएक्शन है. इसमें एल्यूमिनियम कार्बाइड की वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हम ड्रॉपिंग करेंगे. जब हम ड्रॉपिंग कर देते हैं तो उसके बाद एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा और साथ में हमें मीथेन गैस जनरेट हो जाएगी. तो दिस इज आल्सो द सिंपलेस्ट एंड कॉमर्शियल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ मीथेन. एक और मेथड रह गया है जिससे हम एल्केन्स जनरेट कर सकते हैं. उससे हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का साल्ट लेंगे. ठीक है. इस मेथड का नाम है रिएक्शन ऑफ salt of carboxylic acid with soda lime. सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम. व्हेन वी टेक कार्बोक्सिलिक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्टेड इट विथ सोडा लाइम मीन्स NaOH plus CaO. yes we can write this CaO. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R और साथ में ये H, तो R और H प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एलिमेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, एल्केन. तो ये जो दोनों मेथड हैं, ये दोनों मेथड वो है जिससे हम मीथेन गैस को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. सपोज हम क्या एग्जांपल लें यहाँ, एसीटेट एनाइन. ठीक है. सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने क्या ले लिया, एसीटेट सोडियम साल्ट, एसीटेट एनाइन का सोडियम साल्ट ले लिया. उसके रिएक्शन जब हम सोडा लाइम के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीथेन प्लस Na2CO3. तो ये हमने कुछ 5 या 6 मेथड्स पढ़े जिसमें हम एल्केन्स को जनरेट कर सकते हैं. पहला मेथड हमने पढ़ा, अगर समराइज हम इसको करें, साबाटियर सैंड्रन्स रिएक्शन. उसके अंदर क्या होता है, हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का रिडक्शन करके एल्कीन से और एल्काइन से हम एल्केन्स जनरेट कर सकते हैं. सेकेंड मेथड हमने पढ़ा रिडक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स का हम हाइड्रोजनेशन करके HI की प्रेजेंस में या प्लेडियम की प्रेजेंस में, या फिर जिंक को एसिडिक कंडीशंस में लेके या जिंक कॉपर कपल को लेके हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन्स में. थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी वुड्स रिएक्शन. उसके अंदर हम 2 एल्काइल रेडिकल्स को कंबाइन करेंगे. एल्काइल रेडिकल्स जनरेट होंगे जब हम एल्काइल हैलाइड्स पे सोडियम मेटालिक की रिएक्शन करवाएंगे. फोर्थ मेथड हमने पढ़ा कोरे-हाउस सिंथेसिस. कोरे-हाउस सिंथेसिस इज मच फार बेटर देन वुड्स रिएक्शन because in Corey-House synthesis the drawbacks which we seen in the Wurtz reaction gets eliminated. We can also prepare unsymmetrical या फिर asymmetrical alkanes, but in Wurtz reaction we can synthesize only symmetrical alkanes. फिफ्थ रिएक्शन हमने पढ़ी Kolbe's electrolytic method. Kolbe's electrolytic method में हम हाईली कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट्स और पोटासियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अंडर इलेक्ट्रोलिसिस जनरेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस होंगी उससे हमारा एल्केन जनरेट हो जाएगा. बट इन दैट रिएक्शन आल्सो वी आर अनेबल टू सिंथेसाइज मीथेन्स. देन वी स्टडी अबाउट दीज 2 रिएक्शंस. फ्रॉम दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन वी कैन सिंथेसाइज मीथेन गैस टू. So these are the chemical methods for the formation of alkanes. एल्केन्स के बारे में जनरली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था कि एल्केन्स सिंपलेस्ट कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ओपन चेन होते हैं. ठीक है. ओपन चेन और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. और एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2
H2n+2 होता है, where n is the number of carbon atoms. Yes. फिर हमने पढ़ा था कार्बन इन एल्केन्स इज sp3 hybridized. Due to sp3 hybridization the geometry will be tetrahedral, and in tetrahedral geometry the angle present between the bonds is 109 degree and 28 minutes. Now the bond length between carbon and hydrogen is 110 picometer, but the bond length between carbon and carbon in alkanes is 154 picometer. This is the all about the methods of formation of alkanes. In the next lecture we will study about the physical properties of alkanes. Now thank you, and you can study this, the references of this topic you can study these topics in about textbook of BSc first year, maybe Archan's, maybe Pradeep's, and maybe modern publications. Thank you very much.